ہندوستان کی تاریخ میں بہت سے عظیم اور نامور بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی فتوحات اور دانش مندی کے باعث تاریخ کی کتابوں میں اپنا نام درج کروایا۔ بہت سے ایسے عظیم فاتحین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملیوں کے باعث ناممکن فتوحات کو بھی ممکن کر ڈالا اور اپنے حسن اخلاق کے باعث عوام کے دل میں گھر کر لیا۔ ناظرین، ہندوستان پر حکومت کرنے والے مسلمان بادشاہوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جیسا کہ ہم نقطہ پر اس سے متعلق سیریز بھی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ جبکہ آج ہم بات کریں گے ہندوستان کی تاریخ کے 5 عظیم ترین اور مشہور ترین غیر مسلم بادشاہوں کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ناظرین، نمبر 5 پر آتے ہیں شیواجی۔ شیواجی کا تعلق مرہٹا کے قبیلے بھونسلے سے تھا۔ پونا کے قریب شیونیری کے پہاڑی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ شیواجی کی پیدائش کے متعلق محققین مختلف رائے دیتے ہیں۔ مہاراشٹر میں شیواجی کا یوم پیدائش 19 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس دن وہاں عام تعطیل ہوتی ہے۔ دیگر تاریخوں میں 6 اپریل 1627 یا اس دن کے قریب آنے والی دوسری تاریخیں ہیں۔ شیواجی کا نام مقامی دیوی شیوائی کے نام پر رکھا گیا۔ شیواجی کے والد شاہجی بھونسلے ایک مراٹھا جرنیل تھے جنہوں نے دکن کی سلطنتوں کی خدمات سر انجام دیں۔ شیواجی کی پیدائش کے وقت دکن میں 3 اسلامی سلطنتوں کا راج تھا، جس میں کہ بیجاپور، احمد نگر اور گولکنڈہ شامل تھے۔ شیواجی کے والد شاہجی کبھی بیجاپور کے عادل شاہ کے وفادار ہو جاتے تو کبھی مغلوں کے، لیکن ہمیشہ سے پونا میں ان کی جاگیر اور ایک چھوٹی فوج ان کے قبضے میں رہی۔ اوائل میں شیواجی نے مہاراشٹر میں ایک گروہ کے ساتھ دکن کی سطح مرتفع کے مغربی کنارے لوٹ مار شروع کی، جس سے لوگوں میں شیواجی کے نام کا خوف بیٹھنے لگا۔ شیواجی لوٹ مار سے نام بنانے کے بعد فوج میں ایک جنگجو کے طور پر شامل ہوئے۔ شیواجی نے زوال شدہ عادل شاہی سلطنت کے دروں پر مرہٹا سلطنت قائم کی۔ اپنی زندگی کے دوران مغلیہ سلطنت، سلطنت گولکنڈہ اور سلطنت بیجاپور کے ساتھ ساتھ انگریزی، پرتگیزی، فرانسیسی بادشاہوں کے ساتھ شیواجی کے اچھے اور برے تعلقات رہے۔ ان کی عسکری فوج نے مرہٹا کا دائرہ اختیار بڑھایا، قلعوں پر قبضہ کیا اور کچھ نئے قلعے بنائے اور مرہٹا بحریہ کی تشکیل کی۔ انہوں نے قدیم ہندو سیاسی طریقوں اور درباری اجتماعات میں جان ڈالی اور حکومت کے انتظامی امور اور دربار میں فارسی کی بجائے مراٹھی اور سنسکرت کو تقویت دی۔ 1659 میں بیجاپور کے سلطان نے پرتاپ گڑھ میں 10,000 فوجیوں کو شیواجی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، لیکن شیواجی اس حملے میں بچ نکلا اور الٹی چال چل کر اس نے سلطان کی کمر توڑ ڈالی۔ بیجاپوری فوجوں کو اس وقت شکست ہوئی جبکہ شیواجی کے جنگجوؤں کے اچانک حملے میں 3,000 آدمی مارے گئے۔ مراٹھا سلطنت کا آغاز یہیں سے ہوا۔ اس کے بعد جلد ہی شیواجی اور مغل سلطنت آمنے سامنے آ گئی۔ 1670 تک مرہٹوں نے مغلوں سے کھوئے ہوئے زیادہ تر علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ مغلوں سے آزادی کے اظہار کے طور پر شیواجی نے 1674 میں خود کو مراٹھوں کے بادشاہ کا تاج پہنایا تھا۔ شیواجی 52 سال کی عمر میں طبی علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ نمبر 4 پر آتے ہیں کرشنا دیو رائے۔ کرشنا دیو جے نگر سلطنت کا مشہور بادشاہ تھا۔ وہ تلوا خاندان کا تیسرا بادشاہ تھا۔ کرشنا دیو رائے کے دور میں وجے نگر سلطنت نے بلندیوں کو چھوا۔ سطح مرتفع دکن کا سبھی علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس نے بیجاپور، گولکنڈہ، بہمنی سلاطین اور اوڈیشہ کا راجا کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو کافی وسیع کر لیا تھا۔ یہ بادشاہ ہندو راجاؤں میں کافی معروف رہا۔ جب شمالی ہندوستان میں مغلیہ سلطان بابر مشہور تھا، اس وقت جنوبی ہندوستان میں کرشنا دیو رائے کافی مشہور ہو چکا تھا۔ کرشنا دیو رائے جب راجا بنا تو مقامی قصبوں میں لوٹ مار عروج پر تھی۔ دیو رائے نے پہلا کام ہی یہ کیا کہ مقامی قصبوں کی لوٹ مار کی، جس سے اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کرشنا دیو رائے ایک ذہین اور شاطر حکمران تھا۔ اس کی سلطنت کو ایک ہی خطرہ تھا اور وہ خطرہ تھا بیجاپور کی سلطنت سے۔ 1520 میں دونوں سلطنتیں آمنے سامنے آ گئیں۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ کرشنا دیو رائے کے پاس بہت بڑا لشکر تھا۔ اس کے لشکر میں 7 لاکھ پیدل سپاہی، 33,000 گھڑ سوار
और 550 हाथी शामिल थे। कृष्णा इतना बड़ा लश्कर लेकर बीजापुर के सुल्तान से लड़ने के लिए रायचूर शहर में पहुंच गया। घुमसान का रन पड़ा। कृष्णा ने इब्तिदा में 16,000 आदमियों को खो दिया, लेकिन फिर उसने अपनी फौज को इकट्ठा किया और अपने साथियों का हौसला बढ़ाकर भरपूर हमला किया। तादाद में ज़्यादा होने की वजह से कृष्णा को फतह हासिल हुई। उसकी सल्तनत 1529 तक कायम रही। कृष्णा देव राय की मौत 17 अक्टूबर 1529 को हुई। नुक्ता के नाजरीन, इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता हिंदुस्तान की मौर्य सल्तनत का बानी था। आम रिवायात के मुताबिक ये नंद चंदर खानदान का फर्द था जो किसी बिना पर राजा की नाराजगी से डरकर पंजाब की तरफ भाग गया। पंजाब में चंद्रगुप्ता पंजाब और सरहद के बाकी कबाइल का रहनुमा बन गया। उसने अपने वजीर की मदद से यूनानी बालादस्ती के खिलाफ बगावत कर दी और 1 साल के अंदर यूनानी हुकूमत के असर रसूख को मिटाकर एक नए शाही खानदान की बुनियाद रखी, जो उसकी माँ के नाम से मौर्य तारीख में मशहूर हुई। चंद्रगुप्ता से तारीख़ हिंद का एक नया दौर शुरू हुआ। वो पहला हुक्मरान था जिसने शुमाली हिंद की तमाम रियासतों को ज़ेर करके एक मुतहिदा हुकूमत की बुनियाद रखी और अपनी मुमलिकत को खलीज बंगाल से लेकर बहीरा अरब तक वसी कर दिया। चंद्रगुप्ता जवानी के आलम में तख्त पर बैठा। नाजरीन, चंद्रगुप्ता ने महज 24 साल हुकूमत की, लेकिन इस दौरान उसने बहुत से काबिल ज़िक्र कारनामे सरअंजाम दिए। चंद्रगुप्ता ने अपनी 24 साला दौर में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, जिसमें सबसे बड़ी जंग सेल्यूकस के साथ होने वाली जंग थी। अपनी ज़िंदगी के इस थोड़े से अरसे में उसने बड़े बड़े काम किए। मकदूनी फ़ौजियों को हिंदुस्तान से निकालना, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक तमाम शुमाली हिंद को ज़ेर करना, एक ज़बरदस्त फ़ौज तैयार करना और एक अज़ीमुश्शान और वसी सल्तनत का नज़्म व नस्क संभालना, ये सब उसके कारनामों में शामिल था जो उसको काबिल बनाते थे। ये सब उसके कारनामों में शामिल था जिसकी बिना पर वो दुनिया के अजीम बादशाहों की सफ़ में शामिल हुए। उनकी ताकत ऐसी मुस्तहकम हो चुकी थी कि नहायत अमन व अमान के साथ रियासत का इक़्तिदार उसके बेटे और पोते तक मुंतकिल हो गया। चंद्रगुप्ता की बहादुरी और कामयाबी देखकर यूनानी बादशाहों ने उससे इत्तेहाद की ख्वाहिश की और 3 पुश्तों तक दोस्ताना, मसलहती और तिजारती ताल्लुकात कायम रहे। मौर्य हुकूमत एक नीम फौजी हुकूमत थी। इसकी ताकत का दारोमदार फ़ौज पर था। इस ख़ानदान ने अपनी फ़ौज के बल पर ही अपनी हुकूमत कायम की और लोगों के दिलों पर अपनी हैबत कायम रखी। मौर्य अहद में फ़ौज की तादाद में इजाफा हुआ और इसकी तादाद बढ़कर 6 लाख से भी तजावुज़ कर गई। नाज़रीन, निहायत कदीम ज़माने में हिंदी फ़ौज को आम तौर पर 4 हिस्सों यानी सवारों, प्यादे, हाथी और रथों में तकसीम किया जाता था और फ़ौज का हर हिस्सा एक जुदागाना अफसर के मातहत हुआ करता था। प्लेनी के बयान के मुताबिक चंद्रगुप्ता की फ़ौज में 6 लाख प्यादे, 30,000 सवार और 9,000 हाथी शामिल थे। इस अजीमुशान फ़ौज की निगरानी एक मजलिस के सपुर्द थी जो 30 अराकीन पर मुश्तमिल थी, जो मज़ीद 6 ज़ेली मजलिसों में तकसीम की गई थी। हर ज़ेली मजलिस के सपुर्द फ़ौज का ख़ास हिस्सा था। नाज़रीन, चंद्रगुप्ता ने पाटलिपुत्र में नज़्म व नस्क के लिए मजलिस बल्दिया मुकर्रर की थी, जिसमें 30 आदमी शामिल थे और महकमा जंग की तरह 6 कमेटियों में तकसीम थी। ये कमेटियाँ दरअसल आम मामूली पंचायतों की एक सरकारी सूरत जैन रवायात बयान करती हैं कि चंद्रगुप्ता मौर्य मजहबन जैन था। इसकी हुकूमत में जब 12 साल कहत पड़ा तो वो तख्त व ताज से दस्तबरदार हो गया और जैन के एक बुजुर्ग के हमरा हिंद की तरफ चला गया और सन्यासी की हैसियत से रियासत मैसूर में रहता था। बिलाखिर इसी जगह जहाँ भी उसका नाम यादगार है, वहाँ उसने फाके की हालत में अपनी जान दे दी। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आते हैं महाराजा अशोका। महाराजा अशोक सल्तनत मौर्य के तीसरे शहंशाह थे। वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक 272 क़िबले मसीह में गद्दी पर बैठा। उसने चंद्रगुप्त से भी ज़्यादा शोहरत पाई। अशोक ने अपना दारुल सल्तनत टेक्सला को बनाया। उसको अशोक आज़म भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने अहद का सबसे बड़ा और ताकतवर राजा था। कहा जाता है कि अशोक ने अपने एक भाई को छोड़कर
99 भाइयों को कत्ल कर दिया। अशोक एक संग दिल और बहादुर जंगजू था। तख्त पर बैठने के बाद वो कहता था कि कलिंग को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल करेगा। वो 3 साल तक लड़ा और कलिंग को फतह कर लिया। कहते हैं कि इस जंग में हजारों लाखों का खून बहा। ये देखकर अशोक के दिल में ऐसा रहम आया कि उसकी तबीयत बिल्कुल बदल गई। खून खराबे से किनारा कशी करके अमन पसंद बन गया। कहने लगा, अब मैं बुद्ध की तालीम पर चलूंगा और कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। अशोक ने बुद्ध मत को अपनी सल्तनत का मजहब करार दिया। उसका एक बेटा भक्षु और एक बेटी भक्षिणी हो गई। उसने दोनों को संगदीप भेजा कि वहां बुद्ध मत की तबलीग करें। अशोक के दौर में बुद्ध मत की तमाम हिकायतें और रिवायतें पाली जुबान में लिख ली गईं। बुद्ध मत की तबलीग के लिए अशोक ने कश्मीर, कंधार, तिब्बत, बर्मा और दक्कन में भक्षु रवाना किए। अशोक ने 14 अहकाम जारी किए और जा बजा सारे हिंद में पत्थरों पर कंधा करा दिए। इनमें से कई आज भी मौजूद हैं। अशोक आज़म के 14 अहकामात के आसार पंजाब के ज़िला मियांवाली के इलाके माड़ी इंडस, जो दरियाए सिंध के किनारे कालाबाग से मुत्सिल है, वहाँ पर मौजूद हैं। माड़ी इंडस में दाखिल होते वक्त शुमाली जानिब वाक़े पहाड़ी चोटी पर किसी मंदिर के आसार भी मौजूद हैं। इसी चोटी पर अशोक आज़म के अहकामात की तख्तियों के आसार भी मौजूद हैं। अशोक ने मजहबी अहकाम पत्थरों, सतूनों और चट्टानों पर कंधा कराए। इनमें से तकरीबन 40 कुतबे और लाठियाँ दिल्ली, इलाहाबाद, मर्दान और मानसेहरा में दरियाफ्त हो चुकी हैं। इसे इमारतें बनवाने और नई बस्तियां बसाने का बहुत शौक था। उसने पाटलिपुत्र में एक आलीशान महल बनवाया। वादी कश्मीर में श्रीनगर की बुनियाद रखी। 232 कबले मसीह में अशोक ने वफात पाई। उसके 40 साल बाद मौर्य ख़ानदान का भी खात्मा हो गया। जी हाँ नाज़रीन, हिंदुस्तान की तारीख़ के अजीम तरीन गैर मुस्लिम हुक्मरानों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह 13 नवंबर 1870 को पंजाब के शहर गुजरांवाला में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सरदार महासिंह और वालिदा का नाम राजकौर था। रंजीत के नाम का मतलब है मैदाने जंग में फातेह, और उन्होंने अपने अमल से भी ये साबित कर दिखाया कि वो अपने नाम की तरह निडर, बहादुर और बेखौफ जंगजू और आला इंतज़ामी सलाहियतों के मालिक थे। रंजीत सिंह ने महज 10 साल की उम्र में अपने वालिद के हमरा जंग में शिरकत की थी। 1799 में जब महाराजा रणजीत सिंह लाहौर पर काबिज हुए तो इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। गुजरांवाला से निकलकर लाहौर, फिर वहाँ से अमृतसर, कश्मीर, मुल्तान, दिल्ली, लद्दाख और पेशावर तक अपनी सल्तनत को वुसअत दे दी। इनकी फतूहात देखकर महसूस होता था कि वो पैदा ही फातेह रहने के लिए हुए हैं। पंजाब में एक ही जंगजू था जिसके घोड़े दौड़े तो उनकी धूल से मुल्क की सरहदें फैलती गईं। दिलो दिमाग का मुतवाज़न इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ था। कोई हुक्मरान इस खित्ते में इस बुलंदी को ना छू सका जहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया। पाया तख्त पर बैठकर उन्होंने रियासत की हदूद को वसी किया, बैरूनी हमला आवरों की रोकथाम की और खित्ते की तरक्की के लिए अपनी कायदाना सलाहियतें सर्व की। ये वो ज़माना था जब मुग़लों की शानदार सल्तनत ज़वाल पजीर हो रही थी। दिल्ली की मरकज़ी हैसियत अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी थी। मकामी हुर्रियत पसंदों के तौर पर सिख सबसे ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे थे। ये रंजीत सिंह की बहादुरी ही थी कि किसी हमला आवर के कदम इस खित्ते में जम नहीं रहे थे। रंजीत सिंह की सरपरस्ती में सिख जत्थे गुरीला अंदाज की लड़ाई लड़ते और हमला करने के बाद जंगलों और पहाड़ों में छुप जाया करते। रंजीत सिंह ने एक तरफ मैदान जंग में अपनी तलवार गरम रखी तो दूसरी तरफ आवाम के दिल जीतने की कोशिश भी जारी रखी। शादियों के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों की हमदर्दियां भी हासिल की। एक मुसलमान तवाइफ से शादी की और उसके लिए एक मस्जिद बनवाई। मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के बाद ये दूसरे हुक्मरान थे जिन्होंने खित्ते में अमन और भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ दिया। महाराजा की ख्वाहिश थी कि खित्ते में पंजाब की मरकज़ी हुकूमत कायम हो, जिसमें मकामी हिंदू, मुसलमान और सिख मिलकर अपना कलीदी किरदार अदा करें। वो सिख रियासत की बजाय पंजाब की रियासत बनाना चाहते थे। इसी मकसद के तहत मकामी ज़िम्मेदारों को साथ मिलाया, सिख मसलों को इकट्ठा किया, रिवायती तौर पर राइज दरबारी सरगर्मियों से परहेज़ किया, ताज पहनने की बजाय अपनी मजहबी पगड़ी पहनी, दरबार में तख्त पर बैठने की बजाय आम अंदाज में बराजमान हुए।
دربار میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو بطور مشیر وزیر اپنے ساتھ رکھا، جس میں لاہور کا فقیر خاندان نمایاں تھا۔ آج بھی اس خاندان کے افراد لاہور میں مقیم ہیں اور ان کا قائم کردہ فقیر خانہ میوزیم اس خطے بالخصوص رنجیت سنگھ کے دور کی کہانی کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ مہاراجہ کی اخلاقیات کا یہ عالم تھا کہ جس علاقے پر بھی قبضہ کیا اس کے سابقہ حکمرانوں کے لیے مناسب اہتمام کیا تاکہ وہ اپنی گزر بسر اچھی کر سکیں۔ وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے انگریزوں کی مکاری کو بھانپ لیا، ولندیزیوں اور فرانسیسیوں کے عزائم بھی نظر میں رکھے اور سب سے برابر کے تعلقات استوار کیے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے کسی کو سکھ سلطنت کے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ رنجیت سنگھ کا انتقال 27 جون 1839 میں ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد سکھ سلطنت 10 سال تک قائم رہی۔ سکھ خاندان کے آپس میں لڑائیوں، درباری ریشہ دوانیوں، انگریزوں سے سکھوں کی جنگوں اور اغیار کی سازشوں نے 1849 میں سکھ سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ تاریخ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔